Hello students, good morning. Class 11, subject accountancy. The topic is recording. Here recording means recording of business transactions in terms of money in some definite books of accounts. Today I am going to discuss two things. There are two ways of recording. See, financial transactions and events. They are the inputs of recording. They are the inputs of recording because in accounting we record the transactions and events, and they are known as financial transactions and events. There are two ways of recording as per two approaches: modern approach and traditional approach. तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को लिखने का दो पाथ है. देयर आर टू पाथ, देयर आर टू वे ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. देयर आर, यू कैन से देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ रिकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. ऑलरेडी आई हैव स्टेटेड व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच. दिस इज द अमेरिकन अप्रोच. It is also known as equational approach, where we prepare the equations, and the traditional approach is the British approach, or you can say English approach, where we maintain the records of transaction in some definite books. So see here, under modern approach we prepare equations. Equations means accounting equations and statements. And as per traditional approach we prepare books of accounts and statements further, which are required to know the results. So this is the two way of recording of business transaction. This is two approaches of recording of business transactions: modern approach and traditional approach. Under modern approach we prepare accounting equations and statements as required, and under traditional approach we prepare books of accounts, journal, ledger and others, and statements which are required. Modern approach is the American approach. It is under this approach we prepare equations, accounting equations, and traditional approach is the British approach. This is the English approach, where we prepare the books for accounts. For recording the transaction, we keep the books for accounts. Okay, so this is the two way of recording, two path of recording. So please follow this. When you are going to start the recording the transaction, so first of all keep in your mind which path you are going to use, this path or this path, this approach or this approach. So first of all you have to decide that कि आप कौन सा अप्रोच फॉलो करने जा रहे हैं. रिकॉर्डिंग के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा बिफोर स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग. बिकॉज देयर आर टू पाथ, देयर आर टू वे ऑफ, देयर आर टू अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मॉडर्न अप्रोच, बिकॉज there is only one chapter in your syllabus, accounting equations. Accounting equation is the chapter in your book, in your syllabus, accounting equation. So as you know, equation
here accounting equation means A is equal to E. This is the accounting equation. This is the accounting equation. This is the accounting equation. A is equal to E. Here A means assets and E for equities. A for assets and E for equities. There are two types of equities. One is known as internal and others or second is known as external. This internal is also known as capital and this is also known as liabilities. So capital and liabilities, that is, this is the, you can say here asset is equal to capital plus liabilities. This is the final equation. Asset is equal to capital plus liabilities. अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है. तो मैंने आपको पहले ही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में इसको डिस्कस किया था कि एसेट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, कैपिटल क्या है और लायबिलिटीज क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. तो इन वेरी ब्रीफ वी वांट टू डिस्कस हियर एसेट्स आर valuable resources. Assets are valuable resources which assist to business to earn the profit. हम बिजनेस में जिन चीजों को यूज करते हैं या जिनकी सहायता लेते हैं प्रॉफिट अर्न करने में, आर दो थिंग्स आर नोन एज एसेट. और ये चीजें वैल्यूएबल होती हैं. इट मीन्स इनकी एक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पे हम इनको बाजार में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. इनका हमें बेनिफिट मिलता है और ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों फॉर्म में हो सकता है. अगर इनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर, तो उसे हम कहेंगे करंट एसेट. देखिए, जब इनका एडवांटेजेस हमें मोर देन 1 ईयर मिलता रहता है या मिलेगा तो हम इसको कहते हैं नॉन करंट एसेट. तो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दो तरह की एसेट हो सकती हैं. जिनका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाएगा या मिलता है वो करंट एसेट होती हैं. जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता रहेगा, हमारे लॉन्ग टर्म मिलता रहेगा या मिलेगा, उन्हें हम नॉन करंट एसेट कहते हैं. Capital means the amount that is introduced by owners from own sources into the business is known as capital. Every value, every amount in form of cash or in form of kind, वो कैश के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, गुड्स के फॉर्म में हो, एसेट के फॉर्म में हो, जो भी अमाउंट प्रोपराइटर और ओनर द्वारा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया जाता है, बिजनेस में लगाया जाता है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है. कहां से? फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, उसके अपने सोर्सेज से. ध्यान देना है यहाँ पे, दूसरे से लेकर के नहीं, अपने पास से जो कुछ भी पैसा किसी भी फॉर्म में, जो भी अमाउंट को किसी भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में बिजनेस में लगाता है, वो कैपिटल कहलाती है. But this capital represent to the proprietor, represent to the owner of the business, represent to the trader. And liabilities. Liabilities, as you see here, external. That means these are liabilities are the amount which are payable to externals, which are payable to outsiders. It means which you have taken already from outsiders. इन क्रेडिट, जो आपने पहले से लोगों से उधार ले रखा है
और इन फ्यूचर यू हैव टू रिटर्न इट, यू हैव टू गिव इट, such amounts are known as liabilities. So that amount which are payable to outsiders is known as liabilities. उसे हम कहते हैं liability. So liabilities means obligations or claims. Both are capital and liability. Both are obligations. Both are claims. But capital is claim against the internal, against the proprietor or owner. But liability is the amount which is claim against the outsiders, externals. So particularly in the accounting, they are known as capital and liability, which is claim against to internal loan known as capital. The amount that is which claim is against to outsider is known as liabilities. So now asset is equal to capital plus liabilities. So A if for assets, E if for equities. Equities, there are two types of equities, internal and external. Internal is capital here and external is liabilities. Liability भी आप दो तरह की होती है. जो अमाउंट आपको विद इन ईयर, आपको एक साल में जो आपको पेमेंट करना है, चुकाना है, देना है, वापस करना है, वो होती है करंट लायबिलिटी. लेकिन अगर पेमेंट आपको एक साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, उसे हम कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी. तो करेंट लायबिलिटी से क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, आउटस्टैंडिंग्स हुई, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, जिसे आपको विद इन 3 मंथ, विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर पे करना होता है, वो है आपकी करंट लायबिलिटी. लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स में बैंक लोन है, डिवेंचर की अमाउंट है, कैपिटल की अमाउंट है, ये जो लॉन्ग टर्म में आपको पेमेंट करना होता है, जो 1 साल के बाद वापस करना होता है, उसे हम कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी. तो कुल मिलाकर के अकाउंटिंग इक्वेशन का 3 हेड डिसाइड हुआ यहाँ पे, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज. जबकि मॉडर्न अप्रोच में आपको पता है कि देयर आर 5 अकाउंट, देयर आर 5 हेड्स, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, एंड 2 और है एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन्स. एक हुआ एक्सपेंस और लॉस एंड लॉस कैसे, एंड दूसरा हुआ इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स. तो ये एक्सपेंस और इनकम को हम कहां शो कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वो भी तो अकाउंट्स हैं और भी मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट्स हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. तो जो एक्सपेंस और इनकम है, दे आर रिलेटेड टू द कैपिटल, they are included in capital. Expenses reduce the capital and income increase the capital. तो expenses से capital reduce होती है, income से ये increase होती है. तो अगर expense है तो इसमें माइनस कर देंगे, loss है तो माइनस कर देंगे, और income है, gain है, profit है, तो इसी capital में उसको add कर देंगे. तो that is the part of capital. They are related to the capital. तो they included in capital, तो हम उसको कैपिटल में ही इंक्लूड कर देंगे. तो हियर कैपिटल में क्या है, खुद कैपिटल है और इसमें एक्सपेंस और इनकम को भी हम ऐड करेंगे. एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे. तो कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम यहां हो गया, 5 अकाउंट है, एक लायबिलिटी हो गई और दूसरा ये एसेट हो गया. तो इस प्रकार से, लेकिन आपको शो करना है एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज को, क्योंकि एक्सपेंस इनकम का अपना कोई फ्यूचर नहीं होता है, वो एक करंट ईयर के लिए होते हैं और उनका जो मैक्सिमम यूटिलिटी है, जो उनका मैक्सिमम एडवांटेजेस है, वो 1 ईयर का होता है. 1 ईयर के बाद वो क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, वो समाप्त कर दिए जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, कैपिटल में आ जाते हैं. अगर एक्सपेंस हुआ है तो कैपिटल रिड्यूस हुई होगी, अगर इनकम हुआ है तो कैपिटल ऐड हुई होगी, कैपिटल बढ़ी होगी, इंक्रीज हुई होगी, तो उसको हम फाइनली कैपिटल में ले आ लेते हैं, क्योंकि वो ओनर का अपना रिजल्ट है जिसको वो कैपिटल में लाकर अपनी कैपिटल को दिखना चाहता है कि ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई. तो फाइनली वो कैपिटल से रिलेटेड है, तो उनको हम कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देते हैं. तो ये आपका बना फाइनल इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. आज इतना ही. नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे.
Thank you.